Voice is breaking. Thank you. Welcome, ma'am. Okay. Good evening, everybody. I welcome you all to this knowledgeable session of Vivecon 2020, hosted by IMA WDW Amravati. I thank State IMA President Dr. Avinash Bondwe sir, and I thank WDW State President Dr. Jagruti Shah for giving me this opportunity to conduct the session and introducing such a great spiritual personality, Rajyogini VK Usha Didi, whose aura itself is impressing us to rethink about our own lifestyle. For this session, I request the chairpersons to occupy their seats and I welcome them virtually. Dr. Nita Biani ma'am, she is our very active and national WDW secretary. She is from Dhure. Dr. Anuradha Patak ma'am, practicing gynecologist from Amravati, and Dr. Asha Thakre ma'am, practicing gynecologist from Amravati. I welcome them virtually by giving them the flowers. Can you see the flower? Yes, yes. And I welcome today's speaker, Rajyogini Usha, Brahmakumari Usha Didi, and I welcome her also by giving this virtual flower. Didi, Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti. Thank you. Now, friends, when Dr. Jagruti asked me, can we arrange a speech on managing ego, immediately the name of Usha Didi flashed on my mind screen. So I contacted Dr. BK Center in charge Rukmini Didi and contacted Usha Didi. Didi immediately accepted the invitation. This shows her deep involvement in doing the godly services for well-being of society. About our today's speaker, Rajyogini Brahmakumari Usha Didi. She is a senior Rajoga meditation teacher and a management trainer of the Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya based at global headquarters in Mount Abu, Rajasthan. With her innate qualities and Supreme Father's blessing, she is a practical example of applied spirituality. In 1985 was the United Nations International Year of Youth. She participated in Bharat Unity Youth March from Bombay to Delhi and foot marched various villages, cities to spread the wisdom of spirituality. In the path of service, she has played a key role in self-management training programs. A book written by her, Self-Managing Leadership, in Hindi and English, is very famous. She has been invited by many international industrial groups in Hong Kong, Thailand, Malaysia, and in DRDO, Hindustan Aeronautics, IFCO, Amul, BSNL, Godrej, Tata, and so many, to impart systemic self-managing leadership courses for high-ranking executives and management staff. Thousands of presentations in various colleges, medical associations, Rotary, and other corporate sectors also. She participated in a number of conferences emphasizing the importance of spiritual values. She has done thorough research in great Indian epics Ramayana and Srimad Bhagavad Gita. Her lectures are shown on Sony, telecasted on Zee Jagran, Sanskar, Asta, Sadhana channels. Also, she conducts illustrative positive lifestyle Rajoga meditation sessions. So friends, list is unending. We are very lucky to have such internationally famed speaker with us to guide us on a very important topic, art of managing ego within us. I welcome Usha Didi on a virtual dais with virtual floral bouquet. I request Usha Didi to proceed for the lecture and also give us not only the lecture but power to handle our ego also, Didi. So please welcome her by raising your hands and thank you very much. Please, Didi, continue. Om Shanti and greetings of peace to everyone today in this conference, and it gives me a great pleasure to be with you all here to share some of the insights that we have on this subject of ego. Actually, whenever anybody is asked
Can you define ego? What would you say? Huh? What would you say? ईगो क्या है? हम बहुत अच्छी तरह से दूसरों के ईगो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कोई व्यक्ति को देखकर कहेंगे ये व्यक्ति बड़ा इगोइस्टिक है, राइट? लेकिन ईगो को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है. कई बार उसके सिनोनिम्स हमारे सामने आ जाते हैं, आई, मैं. तो आई, मैं, ये सब सिनोनिम्स है, लेकिन एक्चुअली उसका डेफिनेशन क्या है ईगो का? तो उस चीज को समझने के लिए हम एक प्रोसेस को समझेंगे कि व्यक्ति के अंदर ईगो को आइडेंटिफाई करने के लिए भाई हमारे में ईगो है या नहीं है, कैसे पता चले. तो एक चीज जो हम कांस्टेंट करते आए हैं वो क्या है? जीवन में एक चीज जो हमेशा हम करते रहते हैं वो है सोचना. वी कॉन्स्टेंटली थिंक, है ना? सोचने का प्रोसेस निरंतर चलता है. स्लाइड्स आपके सामने आती रहेगी जिसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफिकेशन हो जाएगा. तो एक चीज जो हम हमेशा करते रहते हैं, सोचने का काम कांस्टेंट करते हैं. और कहा जाता है जैसे व्यक्ति सोचता है वैसे ही उसके फीलिंग्स होते हैं, उसकी भावनाएं होती है. जैसे विचार होते वैसी भावनाएं, और जैसी उसकी भावनाएं वैसा एटीट्यूड उसका बनता है, और जैसा एटीट्यूड होता है वैसा उसका बिहेवियर या एक्शंस होता है, और जैसा बिहेवियर एक्शंस है वैसी उसकी पर्सनालिटी बनती जाती है, और उस पर्सनालिटी के कारण उसकी एक डेस्टिनी वैसी तैयार होती है. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लोग हमेशा हमें यही कहते हैं, वॉच आउट फॉर योर थॉट्स एज दे बिकम योर फीलिंग्स. वॉच आउट फॉर द फीलिंग्स एज दैट बिकम्स योर एटीट्यूड. Watch out for that attitude because that is how you are going to behave. And your personality is going to be created. और इसीलिए लोगों ने कहा डेस्टिनी इज इन योर हैंड्स. आपके हाथ में है. जैसी डेस्टिनी आप चाहे वैसी अपनी बना सकते हैं. आज तक हमें धर्म ने ये कहा, धर्म की शिक्षाओं में हमें ये सीखने को मिला, जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य मिलेगा. यानी व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसी डेस्टिनी उसको प्राप्त होती है. वो अपनी डेस्टिनी क्रिएट करता है. उसके बाद साइकोलॉजी ने हमें बताया कि नहीं, कर्म का भी आधार सोच है. इसलिए जैसा व्यक्ति सोचेगा वैसा उसका कर्म होगा और वैसा उसका भाग्य बनेगा. तो इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि साइकोलॉजी ये कहता है कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा उसका भाग्य है. लेकिन स्पिरिचुअल साइंस हमें एक स्टेप और आगे ले जाते हैं कि ये सोच भी हमारी कैसे उत्पन्न होती है, कहां से उत्पन्न होती है ये सोच. तो सोच को ट्रिगर करने वाली चीज कौन सी है? तो कहा जाता है कि सोच का आधार है व्यक्ति का परसेप्शन. जिस नजरिए से हम जो चीज को देखते हैं वैसी हमारी सोच बनने लगती. आपने किसी व्यक्ति के अच्छाई को देखा तो उसकी प्रति आपकी सोच अच्छी होगी. अगर आपने किसी व्यक्ति की कमजोरियों को देखा या उसके दुर्गुणों को देखा तो आपकी सोच उसके प्रति वही हो जाएंगे, नेगेटिव. ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, बुरा है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है. तो जैसा जिसका नजरिया है या जैसी जिसके प्रति हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी सोच बनने लगती है, और ये सारा सिस्टम सारा चालू हो जाता है, प्रोसेस बनता है भाग्य तक. लेकिन ये दृष्टि हमारी जो बनती है वो भी कैसे बनती है?
किसी के प्रति अच्छी दृष्टि या बुरी दृष्टि वो भी किस आधार पर बनती है? तो कहा जाता है एक्सपीरियंस। उस व्यक्ति के साथ का जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। मान लो किसी के साथ का हमारा बुरा अनुभव है, तो नेचुरल है कि हमारा उसके प्रति दृष्टिकोण वैसा बनने लगता है और वैसी सोच बनने लगती है। किसी के साथ का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, तो हमारे उसके प्रति नजरिया, दृष्टिकोण वैसा ही बन जाता है। अच्छा, ये एक्सपीरियंस भी हमें कैसे मिलता है? उसको भी अगर उसकी डेप्थ में जाए तो एक्सपीरियंस का आधार भी क्या है? तो कोई भी एक्सपीरियंस हमें जो प्राप्त होता है, माना वो दो व्यक्ति के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन में आया है, और वो इंटरेक्शन में क्या चीज आई है? तो इंटरेक्शन में या वैल्यूज या वीकनेसेस का प्रयोग हुआ है। आप किसी के साथ बहुत प्यार से बात करो, वो व्यक्ति भी बहुत प्यार से रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन आप थोड़ा भी गुस्से में आकर के, रोब में आकर के, ईगो में आकर के बात करो, तो नेचुरल है वो अपने आप को कम नहीं समझता है, वो भी उसी अनुसार रिएक्ट करता है। और उसका रिएक्शन देख करके हम कई बार कहते हैं ये व्यक्ति तो कैसा है, हमने ये बात कही और देखो उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया, अच्छा नहीं है, है ना? तो कहीं ना कहीं आदान प्रदान जो हुआ है दोनों के इंटरेक्शन में, वो अगर वैल्यूज का आदान प्रदान होता है तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। जहां वीकनेस का आदान प्रदान हुआ तो नेचुरल है एक्सपीरियंस भी हमारा नेगेटिव होता है। लेकिन ये वैल्यूज या वीकनेस अपने आप कैसे आते हैं इंटरेक्शन में? आपका कोई सीनियर है, वो कुछ गलत बात भी बोल रहा है, तो भी आपको क्या बोलना पड़ता है? यस सर, यस मैडम, यस मैडम, बहुत पोलाइटली आप उसको कहते हैं, जबकि पीछे जाकर कहेंगे क्या पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे, है ना? लेकिन वहां आप जरा भी रिएक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन आपका कोई जूनियर, और जूनियर कुछ ऐसी ही बात बोल दे, आपको गुस्सा आ जाएगा, तो ये वीकनेस बाहर निकल आती है। सीनियर के सामने कभी वीकनेस बाहर नहीं आती है। तो ये वैल्यूज और वीकनेस को ट्रिगर कौन करता है? कौन सी चीज ऐसी है हमारी मैकेनिज्म में? क्योंकि ये सारी मेरी इंटरनल मैकेनिज्म है, दिस इज नॉट आउटसाइड, ये सारी मेरी इनसाइड है मैकेनिज्म सारी। तो कौन सी मैकेनिज्म है जो ये वैल्यूज या वीकनेस को ट्रिगर करती है और बाहर ले आती है? तो देखा गया हमारी बिलीफ सिस्टम। हमने किसी को मान लिया कि ही इज माई जूनियर, और वो जूनियर होकर के मुझे ये बात कैसे बोल सकता है, और हमने मान लिया ये मेरे सीनियर है, इसीलिए उसके सामने आई कांट रिएक्ट, आई हैव टू लिसन टू दैट पर्सन। तो हमेशा बिलीफ सिस्टम में जो चीज चली गई, उस बिलीफ सिस्टम के आधार पर ये सारी प्रोसेस कार्य करती है। तो शॉर्ट में स्पिरिचुअल साइंस हमें यह सिखाता है कि एज इज योर बिलीफ, जो आपने मान्यता अपने अंदर लाई है, उस बिलीफ के आधार पर आपकी सोच चलेगी, और उस सोच के आधार पर आपके कर्म होंगे, और उसी के आधार पर आपकी डेस्टिनी, भाग्य बनता है। तो शॉर्ट में मैं कहूं, बिलीफ शेप्स आवर डेस्टिनी, राइट? कर्म भाग्य को निश्चित नहीं करता है, सोच भाग्य को निश्चित नहीं करता है, लेकिन मेरी अंदर की मान्यता भाग्य को निश्चित करती है। और इसीलिए आज की दुनिया के अंदर बच्चे अगर माँ बाप से अलग होते हैं तो क्यों अलग होते हैं? कहीं ना कहीं वो भी अपने माता पिता से यही कहते हैं कि देखो, अगर हमें इकट्ठा रहना होगा तो आपको अपनी बिलीफ सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने होंगे,
नहीं तो बहुत अंडरस्टैंडिंग गैप क्रिएट होता रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहेगी। अगर बड़े कहेंगे नहीं, दिस इज व्हाट वी बिलीव एंड वी स्टिक टू आवर बिलीव्स, तो बच्चे क्या कहते हैं, देन इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव टुगेदर, क्योंकि हमारी मान्यताएं कुछ और है, आपकी मान्यताएं कुछ और है, ये क्लेश होता रहेगा, टक्कर होती रहेगी। सो इट इज बेटर कि हमारा पीसफुल और हार्मोनियस रिलेशनशिप रहे, उसके लिए हम सेपरेट हो जाते हैं। इसीलिए लोग फ्रीडम चाहते हैं कि फ्रीडम माना हम जहां अपनी मान्यताओं को लेकर के जी सके, न वो अपनी मान्यता चेंज करना चाहते हैं, न वो अपनी मान्यता चेंज करना चाहते हैं, और उस मान्यता के कारण वो डेस्टिनी क्रिएट हो रही है। जिसका एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं कि बिलीफ कैसे डेस्टिनी को क्रिएट करती है। एक बार एक कंपनी है और उस कंपनी का एमडी अपने ऑफिस में है, उसके कंपनी में कुछ यूनियन प्रॉब्लम चल रहा है, और यूनियन प्रॉब्लम जो चल रहा है तो यूनियन लीडर एक दिन मिलने आता है और वो सेक्रेटरी से कहते हैं, आई वांट 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट चाहिए, एमडी की मुझे मिलना है। सेक्रेटरी ने कहा आप बैठो, मैं आपको टाइम ले करके देती हूँ। वो अंदर जाकर के एमडी से कहती है, फलाना यूनियन लीडर आपसे मिलना चाहता है। एमडी ने कहा, यूनियन लीडर, जरूर कोई नई डिमांड्स होगी, सुबह सुबह दिन खराब करेगा, उसको शाम का टाइम दे दो। वो बाहर आकर कहती है, ऐसा करो आप शाम को 5 बजे आ जाओ, जाने से पहले, घर जाने से पहले आप उस समय मिल लेना। यूनियन लीडर भी चला जाता है कि ओके नो प्रॉब्लम, शाम को 5 बजे मिल लूंगा। वो 5 बजे आता है और उस समय कुछ गेस्ट आ गए होते हैं और वो गेस्ट के साथ एमडी मिल रहा है, उनका कुछ फ्यूचर प्लानिंग है उनके साथ में बिजनेस का। तो वो लोग मिलने आ गए अचानक। तो सेक्रेटरी ने कहा कि देखो आज तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ गेस्ट आए हैं, उसके साथ बिजी है एमडी, और कब तक बिजी रहेंगे मालूम नहीं। सो प्लीज ऐसा करो, आप कल सुबह आ जाओ। यूनियन लीडर ने कहा नो प्रॉब्लम, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। वो चला गया। दूसरे दिन सुबह आ गया। जैसे ही दूसरे दिन सुबह आ गया तो सुबह में एमडी जो है उनकी कोई अर्जेंट मीटिंग थी, पहले से ही सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए थे, वो उस मीटिंग में बहुत बिजी हो गए थे। तो सेक्रेटरी ने कहा कि आई एम सो सॉरी, मैंने ये अपॉइंटमेंट देखी नहीं थी कि इनके बिजी मीटिंग शेड्यूल्स है, और ये तो बोर्ड मीटिंग चल रही है, अभी कितने बजे फ्री होंगे मैं नहीं बता सकती हूँ। तो यूनियन लीडर ने कहा कोई बात नहीं, मैं शाम को आ जाऊंगा, जाने से पहले। वो शाम को पुनः आ जाता है, और शाम को जो है एमडी को किसी की शादी में जाना था, चले गए, निकल गए पहले ही, तो वो यूनियन लीडर नहीं मिल सका। तीसरे दिन से यूनियन लीडर ने 10 दिन की छुट्टी लगा दी और वो चला गया। 10 दिन के बाद कोइंसिडेंटली, एक्चुअली तो कहा जाता है देयर इज नथिंग लाइक कोइंसिडेंस, लेकिन कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि वो यूनियन लीडर भी गेट से एंटर हो रहा था, और मेन गेट से एमडी भी आ रहे थे। उस समय एमडी का ध्यान गया यूनियन लीडर पर, और उसको महसूस हुआ रही ये 10 दिन पहले आया था, बाद में मिला ही नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो रहा हो, आज तो बुलाना पड़ेगा उसको। जाते ही ऑफिस में उसने सेक्रेटरी से कहा कि वो यूनियन लीडर को बुलाओ। यूनियन लीडर को बुलाया गया कि भाई आप 10 दिन पहले आए थे, मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी कि आप 2-3 बार आके गए, लेकिन सॉरी
उस समय हमारी मीटिंग्स थी, हमारा कोलैबोरेशन हो रहा था दूसरी कंपनी के साथ, तो वो सारी मीटिंग्स चलने के कारण मैं आपको मिल नहीं पाया। अभी भी मैंने आज आपको देखा तो एकदम ध्यान में आया। बताइए आपको क्या बात करनी थी? तो यूनियन लीडर ने कहा जो बात करनी थी मुझे वो काम तो हो गया, इसलिए अभी तो कोई काम नहीं। तो एमडी ने कहा बहुत अच्छी बात है अगर हो गया तो, लेकिन एटलीस्ट आई शुड नो कि आप किस लिए आए थे। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर भी बताइए तो सही क्या बात थी। तो उसने कहा बता के फायदा भी क्या अभी? कहा नहीं बताओ बताओ। जब बहुत इंसिस्ट किया तब यूनियन लीडर ने कहा कि 10 दिन पहले जो मैं आया था, मेरे बेटे की शादी थी, उसका इनविटेशन कार्ड देने आया था, लेकिन आपके पास हमारे लिए 10 मिनट नहीं है। अब बताओ डेस्टिनी क्या होगी? और ये डेस्टिनी किसने क्रिएट किया? वो यूनियन लीडर जाकर कहता है हमारा एमडी इतना इगोइस्टिक है, वो 10 मिनट नहीं दे सकता है हमको। वो एमडी कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे जरा भी पता नहीं था, मालूम होता था तो मैं जरूर आपको उसी दिन सुबह मिल लेता था, लेकिन सुबह क्यों नहीं मिल पाया? ये बिलीफ बीच में आ गई। यूनियन लीडर है, जरूर कोई डिमांड्स होंगी, सुबह सुबह दिन खराब करेगा, शाम को बुला लो। बस ये एक जो बिलीफ अंदर आ गई यूनियन लीडर के साथ जो एसोसिएट थी, और यूनियन लीडर माना डिमांड्स। जरूरी नहीं है, समटाइम्स वी हैव टू चैलेंज आवर ओन बिलीफ्स। जो हमने मान्यता अपने लिए या दूसरों के लिए बनाई है, जरूरी नहीं है कि हम उस मान्यता को लेकर के चलते रहें जीवन में, क्योंकि उसके बाद जो डेस्टिनी होंगी वो बहुत खराब हो सकती है। अब आप बताओ कि डेस्टिनी क्या होगी? क्या एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होंगे या यूनियन प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे? यूनियन के साथ मैनेजमेंट सहयोग करेगी या हमेशा एक तनातनी बनी रहेगी? अगर उसी समय उसको बुला लेते थे कि भाई आ जाओ, क्या बात है, उसको मिल लेते थे, और मिलने के बाद उसको जैसे ही पता चला कि उसके बेटे की शादी है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर लिया होता था। कब शादी है, खुद नहीं जा सकते थे तो किसी को, मैनेजर को या किसी को भी भेज देते थे कि भाई ये कंपनी के तरफ से एक तोहफा लेकर के जरूर जाना, और तोहफा दे आते थे उस अवसर पर। उसके बाद डेस्टिनी कैसी होगी? अंडरस्टैंडिंग होगी या क्लैशेस होंगे? तो कई बार जो हमारी बिलीफ सिस्टम को हम पकड़ के रखते हैं, विच फॉर्म्स आवर ईगो, और अगर उस बिलीफ सिस्टम के प्रति हमारा बहुत डीप अटैचमेंट है और उस अटैचमेंट को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, पकड़ के रखते हैं, उस मान्यता को हम पकड़ के रखना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो जितना उस मान्यता को हमने पकड़ के रखा, छोड़ते नहीं है, उतने लाइफ में कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे। जहां हम ये फील करते हैं नो आई एम राइट, ये मेरी बिलीफ राइट है और उसको मैं किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकता, तो ये जो अटैचमेंट टू अ रॉन्ग बिलीफ इसीलिए कहती हूं क्योंकि समय प्रति समय बिलीफ्स को चेंज करना चाहिए। बचपन से लेकर के व्यक्ति अपनी बिलीफ को आज एक बच्चा जो मानता है, थोड़ा बड़ा होने के बाद उसकी वो मान्यता बदल जाती है, और बड़ा होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जैसे चेंज होती है, तो मान्यता परिवर्तन होती रहती है। लेकिन जब लाइफ में कुछ एज के बाद कुछ मान्यताओं को हम इतना पकड़ के रखने लगते हैं और उस मान्यता से अटैच्ड हो जाते हैं, तो ये अटैचमेंट जो है टू अ रॉन्ग बिलीफ, इसलिए रॉन्ग बिलीफ को कहती है। तो जब भी व्यक्ति के जीवन में अटैचमेंट होता है तो ही स्टार्ट्स लिविंग इन एन इल्यूशन।
उसको एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा होता है कि मेरी मान्यता सही है, और इसीलिए जब सही मानने लगते हैं, उस इल्यूजन के कारण जो है उसमें जीने लगते हैं, तो वो मान्यता के कारण जो है उसको कभी कभी लाइफ में बहुत प्राइस चुकानी पड़ती है। इल्यूजन जहां है, तो अगर कोई ने उस बिलीफ सिस्टम को अपोज किया, चैलेंज किया, तो क्या होता है, या हमें चेंज करने के लिए कहा, तो एक रेजिस्टेंस आता है और हम सोचते हैं कि नहीं, उसको चेंज करना मुश्किल है, उसको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए हम कभी कभी जो अपनी बिलीफ को, जिसके साथ हम बहुत अटैच है, और उसको हम सही समझ करके उस इल्यूजन में जीने लगते हैं, और उसको किसी ने चैलेंज किया तो उसका अच्छा आइडिया भी रिजेक्ट करते हैं, रेजिस्ट होते हैं, रेजिस्ट करते हैं, नहीं। और जैसे ही रेजिस्ट किया तो लाइफ में फियर आता है, भय उत्पन्न होता है कि मैंने आज तो उसके आइडिया को रेजिस्ट कर लिया, लेकिन कल को उसने अगर प्रूव कर दिया कि आई एम रॉन्ग सबके बीच में, तो क्या होगा? तो फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ बीइंग हर्ट, फियर, जहां ये फियर आया, तो ये फियर, फियर ऑफ बीइंग हर्ट, किसको हर्ट होगा? मेरे ईगो को। फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज, कौन क्रिटिसाइज्ड होगा, किसकी ग्लानि होगी? मेरे ईगो की। तो जहां लाइफ में फियर है, ये फियर संकेत देता है इट्स ईगो। फियर ऑफ फेलियर, fear of being hurt, fear of being criticized, fear of being challenged, जहां भी ये भय, और इसीलिए कहा जाता है कि आज के संसार में बिना भय के कोई नहीं जी रहा है। हर कोई को कोई ना कोई बात का भय जरूर है। क्यों? क्योंकि उसको ईगो जरूर है, हर एक का अपना अपना ईगो है। हम दूसरे के ईगो को बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन अपना भय जहां है, उस ईगो को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कई बार बातों बातों में लोग एक दूसरे को सलाह भी देते हैं, लेट गो करो, लेट गो। किस चीज को लेट गो करना है? किसको लेट गो करना है? तो लेट गो, अगर ये शब्द को देखा जाए, लेट और ई के नीचे गो लगा दो, तो क्या बन जाएगा? लेट ईगो गो। उसको छोड़ो। जिस बात को पकड़ के रखा है, उस बात को समय के अनुसार हमें छोड़ना पड़ता है। अगर अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, तो हमें उस बात को, उस बिलीफ को, उस मान्यता को, उस चीज को छोड़ना पड़ता है। कि छोड़ेंगे तो हमारे संबंध सुमधुर रहेंगे। अगर हमने उसको पकड़ के रखा, छोड़ना नहीं चाहते, लेट गो करना नहीं चाहते, तो क्या होगा? संबंध टूटेगा जरूर। तो ये सारी प्रोसेस को समझते हुए अगर अब ईगो को डिफाइन करना हो, तो कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज ईगो? व्हाट इज ईगो? क्या कहेंगे? व्हाट इज ईगो? ईगो का डेफिनेशन बहुत सुंदर है। ईगो इज द अटैचमेंट to a wrong image of myself or a belief about myself। जो मैंने अपने लिए मान्यता बना के रखी, और उस मान्यता के साथ मेरी अटैचमेंट जो है, और उस अटैचमेंट को लेकर के मैं जीना चाहती हूं, तो उस अटैचमेंट को जो है आइडेंटिफाई किया गया है ईगो। ये व्यक्ति बहुत इगोइस्टिक है, किसी की बात को मानेगा नहीं, वो अपनी बात छोड़ेगा नहीं, राइट? और वहां कितने प्रॉब्लम्स,
चाहे फैमिली में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो आज ईगो क्लैश हो रहा है, दोनों अपनी अपनी मान्यता को पकड़ के रखते हैं। चाहे बाप बेटे के बीच में होता है, चाहे भाई भाई के बीच में होता है। तो ये सब बातों को लेकर के अगर देखा जाए कि आज जो भी दुनिया के अंदर टकराव हो रहा है, इसलिए कहा ताली दो हाथ से ही बजती है, तो दोनों अपने अपने ईगो को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए होती है। इसीलिए जहां ईगो है वहां पर एक भय जरूर है, और वो भय क्या संकेत दे रहा है? वो भय एक संदेश लेकर आता है। सो फियर इज द मैसेंजर दैट कम्स टू टेल मी दैट आई एम होल्डिंग ऑन टू समथिंग एंड देयरफॉर आई हैव टू लेट गो ऑफ दैट समथिंग। उसको मुझे छोड़ना होगा, तभी ये भय समाप्त होगा। जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं तो भय तो बना रहेगा। फिर उसको छोड़ने के लिए करेज चाहिए। इसलिए कहा जाता है करेज माना क्या? इज द एबिलिटी टू लेट गो ऑफ द बिलीफ दैट द फियर इज रियल। ये हिम्मत, ये साहस जरूरी है, क्योंकि अगर ये छोड़ा नहीं तो क्या होगा? अगर ये नहीं छोड़ा गया तो इमोशनल अटैक्स तो आएंगे। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक व्यक्ति को कब आता है? कि जब हमारा इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते। इमोशनल अटैक, जो चीज मैंने मान्यता में बना के रखी थी, जिसको मैं, इसलिए कहा जाता है जो इगोइस्टिक होता है ना, उसको हार्ट अटैक जरूर आता है। क्यों आता है ना? क्योंकि जिस चीज को पकड़ के रखा उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और वो हर्ट हुआ। जब हर्ट हुआ तो अटैक तो आना है। इमोशन, ई प्लस मोशन, अर्थात द डिस्टर्बेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ माई कॉन्शियसनेस when the object of attachment or identification is threatened or moved, है ना? Emotional attack, इमोशनल अटैक तभी व्यक्ति को आता है कि द डिस्टर्बेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ माई कॉन्शियसनेस when the object of attachment with which I have identified myself is threatened or moved, तब ये अटैक जरूर आता है। और जैसे ही अटैक आता है तो we become a slave to that emotion। और ये पाथवे क्या है? इस स्लेव बनने का, इस इमोशन का पाथवे क्या है? जो इस इमोशन के स्लेव बनता है तो उसका पाथवे है सबसे पहले अटेंशन। दूसरा नंबर जिसको कहते हैं अट्रैक्शन। अट्रैक्शन जाता है, सबसे पहले अटेंशन जाता है, फिर अट्रैक्शन। तीसरा नंबर है अटैचमेंट। अटैचमेंट इमीडिएटली नहीं आता है, ये प्रोसेस है, कैसे हम स्लेव बनने लगते हैं उस इमोशन के। चौथा है जब उस अटैचमेंट से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है उस बिलीफ से, तो एडिक्ट हो जाते हैं। और जहां एडिक्शन है वहां अटोनमेंट, यानी उसका प्राइस हमें पे करना ही पड़ता है। इसीलिए ये 5 स्टेप है जिसको हम कहते हैं 5 A's। और वे 5 A's जहां है, the 5 A's is a pathway to become the slave to that emotion। इसको मैं एक एग्जाम्पल देकर के क्लैरिफाई करती हूं कि मान लो कि एक यंग लड़का है जिसने अपना आर्किटेक्चर पास किया है, आर्किटेक्ट बन गया, और आर्किटेक्ट बनने के बाद वो जैसे ही पढ़ाई करके घर में आता है तो घर में आने के बाद जो है इज लुकिंग फॉर अ जॉब, के कोई अच्छी जॉब मिल जाए, या मैं अपना खुद का शुरू करूं। लेकिन खुद का शुरू करने के लिए बहुत उसको एक ऑफिस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए।
ऐसे क्लाइंट्स को इमीडिएट मिलते नहीं है, तो वो सोचता है किसी के पास में जॉब करके कम से कम एक्सपीरियंस ले लो। अब घर में है, थोड़े दिन के बाद कोई अंकल आता है उनके घर में मिलने के लिए, लड़के को देख करके कहता है, अच्छा बेटा क्या पास करके आया, क्या पढ़ाई कर लिया? तो उसने कहा कि अंकल मैं आर्किटेक्ट बन गया। अच्छा आर्किटेक्ट बन गया, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ही कहा आर्किटेक्ट बन गया, फिर उसने पूछा वो अंकल ने कि क्या विचार है अभी? तो कहा नहीं कुछ देख रहा हूं, किसी के पास थोड़ा समय अगर मुझे मिल जाए एक्सपीरियंस आदि का, फिर मैं अपना शुरू करूंगा। कहा बहुत अच्छी बात है, चलो तेरे पास तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आजकल की पढ़ाई के हिसाब से नई क्रिएटिविटी होती है, आर्किटेक्ट में अच्छी डिजाइन्स बना लेते हैं। तो उसने कहा कुछ एक्सपीरियंस, माना अच्छा पढ़ाई में तो रहा और इतने मार्क्स से मैं पास हुआ, ये मेरा रिजल्ट है, सारा बताता है। वो अंकल बहुत खुश हो जाते हैं। अंकल ने कहा चलो मैं तुझे एक प्रोजेक्ट देता। कहा अच्छा। कहा मेरे पास एक जमीन है और ये जमीन का टुकड़ा है जिसको मैं डेवलप करना चाहता हूं। शहर के एक कोने में है, लेकिन अगर डेवलप करेंगे ना तो उस तरफ का एरिया बहुत विकसित हो सकता है, और उसके लिए मुझे बहुत अच्छे से कुछ ऐसा तुम डिजाइन बना करके दो, हम क्या बना सकते हैं वहां पर? तो वो व्यक्ति ने कहा, वो लड़के ने कहा कि अंकल हम अगर कोई मॉल बनाए, आजकल तो बहुत उसका ये है, और धीरे धीरे फिर सब लोग उस तरफ आने भी लगेंगे, सब चीजें, वो एरिया भी डेवलप हो जाएगा। दे डिसाइड, और बहुत अच्छा। तो कहा अच्छा ठीक है चलो मॉल आदि बनाते हैं, कुछ ऑफिसेस बनाएंगे, लेकिन उसकी बढ़िया डिजाइन बना करके दो। अब वो बच्चा, उसका पहला प्रोजेक्ट है, और पहला प्रोजेक्ट होने कारण इतना एंथुजियास्टिक है, और वो एंथुजियाज्म के कारण अपनी सारी क्रिएटिविटी को लगा करके 4-5 डिजाइन ऐसी उसके एलिवेशन की बना करके देता है। और थोड़े ही दिन में वो अंकल के पास जाता है कि अंकल अभी आप इसमें से चूज करो कि आपको ये ऑफिसेज आदि के लिए, मॉल आदि के लिए कौन सी डिजाइन पसंद आती है। वो अंकल देखता है, क्या एक से एक बढ़िया डिजाइन थी। ही वॉज सो हैप्पी। उसमें से एक डिजाइन उन्होंने चूज किया और चूज करके कहे नाउ कैरी फॉरवर्ड विद दिस। और उनके जो कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर करके सारी डिजाइन दे करके सारा बनाने का काम शुरू होता है। जैसे जैसे वो बिल्डिंग तैयार होकर के आगे आता जाता है, उसका एलिवेशन देख करके लोग सोचते हैं ये कौन है इसका आर्किटेक्ट, बहुत बढ़िया डिजाइन किया। और इस छोटे से शहर में इतना बढ़िया, उस तरफ की एरिया के सारे जमीन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, काफी लोग उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस आने लगते हैं, ऑफिसेस आने लगती है, सारा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और ये अंकल को कई लोग पूछते हैं आपका आर्किटेक्ट कौन है, बड़ा जोरदार डिजाइन बन रहा है। वो अंकल कहता है मिलाऊंगा आपको, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसे करके। अब वो सारा बिल्डिंग जब बन के तैयार हो जाता है, इसका इनॉग्रेशन रखते हैं, और उस इनॉग्रेशन में शहर के सब हस्तियों को बुलाते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, दूसरे शहरों से भी जो लोगों का कांटेक्ट है उन लोगों को भी बुलाया जाता है। और उस इनॉग्रेशन में अनाउंस करते हैं कि मेरे को कई लोगों ने पूछा कि इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट कौन है, और मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करता हूं उस यंग आर्किटेक्ट से। और उस आर्किटेक्ट को वो स्टेज पर बुलाते हैं कि ये वो यंग लड़का है जो पढ़ाई करके आया, और इसकी क्रिएटिविटी देखो, इसने एक से एक डिजाइन्स मुझे दिखाए, लेकिन जो है चूज करना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो सब लोग ने खूब उसको तालियां बजा करके बधाइयां दिया। एवरीवन वाज कांग्रेचुलेटिंग कि बेटा बड़ा आगे बढ़ेगा, तुम खूब आगे जाएगा, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है। सबने बधाई दिया, कमेंट्स दिया, अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स उसको दिया। और अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिया जब, उस दिन रात को उसको नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है?
अटेंशन गया, सचमुच मैंने इतना अच्छा किया, लोगों को ये पसंद आया होगा, ये चीज पसंद आई होगी, ये चीज पसंद आई, सारा एनालाइज करता है। इसलिए रात भर नींद नहीं आई, खुशी के मारे नींद नहीं आती। अब जैसे ही अटेंशन गया, कैसे ईगो डेवलप होता है वो मैं बता रही हूं कि अटेंशन गया, अटेंशन के बाद वो जब वहां से रोज जाता है ऑफिस अपनी, तो उसको अपनी ही क्रिएशन के प्रति एक अट्रैक्शन होता है, और जब रोज उसको देखते हुए जाता है तो रोज अपनी एनर्जी देता जा रहा है, और जिस चीज को ज्यादा एनर्जी देते हैं उस चीज के साथ फिर लगाव होता है, अटैचमेंट बनता है। उसके बाद दूसरे अंकल आए कि भाई हमारा भी एक प्रोजेक्ट है, तुम इतना अच्छा करते हो, लेकिन हमारे पास उस अंकल जितना बजट नहीं है, हमारा बजट थोड़ा कम है, जमीन हमारे पास बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें हम ये बनाना चाहते हैं, उसके लिए तुम एक डिजाइन बना के दो। उसने फिर बहुत अच्छी डिजाइन बना करके दिया, थोड़े कम बजट में भी, क्या भी पैर जमाना है उसको। उस समय भी लोगों ने बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए, बहुत बधाइयां दी, बहुत खुश हो गया। उसको भी खुशी हुई कि वाह, लोग तो बहुत तारीफ करते हैं मेरी शुरू से ही। अब ये अटैचमेंट जितना उसका बढ़ता जाता है, और ये फीलिंग उसको अंदर में आती है, एक बिलीफ उसकी क्रिएट हो जाती है कि इसका मतलब ये शहर में कोई अच्छा क्रिएटिव आर्किटेक्ट ही नहीं है मेरे जैसा, आई एम द बेस्ट, मेरे पास बहुत कुछ है, और वो अपनी ही मान्यता के साथ एडिक्ट होने लगता है। उसके बाद तीसरा कोई पार्टी आता है, और तीसरी पार्टी कहती है देखो हमारे पास बहुत लिमिटेड बजट है, हमें भले इतना बड़ा एलिवेशन नहीं चाहिए, सिंपल होगा तो भी चलेगा, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से उसको डेवलप करना है। अब सिंपल, इतना क्रिएटिव बनने के बाद अगर सिंपल बना दे तो लोग क्या सोचेंगे, तो वो क्या कहता है कि थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इतना अच्छा बनेगा नहीं, फिर अरे कोई बात नहीं, सिंपल होगा तो भी हमें चलेगा। तो उसको लगता है कि भाई मेरी डाउन हो जाएंगी इमेज, मैं क्रिएटिव से क्रिएटिव बनाने करके दूं समाज को, उसी में तो मेरी बड़ाई है, सिंपल बना दूंगा तो लोग सोचेंगे अच्छा ये तो इतना सिंपल हो गया 2 बार में ही, इसके पास ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं है। तो वो कहता है कि अंकल सॉरी, अभी मैं बहुत बिजी हूँ दूसरे प्रोजेक्ट पर, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, यहाँ इतना कम बजट में नहीं होगा, ये थोड़ा तो उसको एलिवेशन आदि देना पड़ेगा। तो वो अंकल क्या कहता है, कोई बात नहीं बेटा, कोई और मिल जाएगा। अब जैसे ही वो अपनी क्रिएशन के साथ एडिक्ट होने लगा था, उसी समय उसको एक फियर आया कि अगर मान लो किसी दूसरे आर्किटेक्ट को दिखाया और उनसे करवाया तो उसने हमको चैलेंज कर देगा, वो हमको चैलेंज कर देगा और कम बजट में भी वो बना करके दे देगा। फिर वो कैसे तैसे हाँ करके फिर वो फियर को खत्म करने के लिए वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जहां वो जिस दिन मना करता है, क्योंकि जिस दिन उसको ये एडिक्शन आ गया अंदर में, आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा आर्किटेक्ट इस शहर में कोई नहीं है, इसीलिए तो मुझे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं, वहां उसको वो प्राइस पे करना ही पड़ता है, अटोनमेंट। सो दिस इज हाउ वी बिकम अ स्लेव टू आवर ओन इमोशन ऑफ ईगो, है ना। अब जैसे ही उसमें हम बन गए, तो अब बन गए तो फिर मैनेज तो करना पड़ेगा, ईगो को मैनेज कैसे करेंगे, उसको हील कैसे करेंगे उस इमोशन को। अनदर 5 A's, जैसे ये 5 A से हम स्लेव बने, तो दूसरे 5 A से हम उससे हील भी करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला चाहिए अवेयरनेस, सबसे पहला चाहिए अवेयरनेस, एक जागृति। दूसरा है फिर एक्नॉलेज, उसको एक्नॉलेज करने की आवश्यकता है।
कि हाँ, ये मेरी बिलीफ सिस्टम है, उसको मुझे चैलेंज करना है, उसको मुझे गिव अप करना है। अगर गिव अप नहीं करेंगे, लेट गो नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो एक्नॉलेज करना पड़ता है। तीसरा फिर एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकार करना पड़ता है। और चौथा, तब स्वीकार करेंगे तब वी राइज, असेंड। और जहां असेंड करते हैं देन वी गेट अट्यून्ड, दूसरों के साथ हमारी ट्यूनिंग, मेंटल ट्यूनिंग, इमोशनल ट्यूनिंग तभी हमारी हो सकती है। तो ये पहले 5 एज हमें स्लेव बनाती है, दूसरे 5 एज हमें मुक्त करती है। अवेयरनेस, जागृति। जागृति किस बात की? एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक गुरुजी थे और गुरुजी के पास एक शिष्य थे। तो गुरुजी बहुत अच्छी तरह से उसका आश्रम देख रहे थे, उसका शिष्य उसको हर रीति से मदद करता था। एक बार गुरुजी के मन में आया कि मैं हिमालय पर जाऊं और मैं जो है तपस्या करूं। तो जैसे ही ये संकल्प आता है कि मैं हिमालय पर जाऊं, तो वो अपने शिष्य को बुलाकर कहता है कि देखो, मैं हिमालय पर जाना चाहता हूं, है ना, और मैं हिमालय पर जाना चाहता हूं, तो तुम है मेरी एब्सेंस में उतना समय तुम ये आश्रम की देखभाल करो। तो कहा ठीक है गुरुजी, आप भले जा सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि मैं ऐसा करता हूं, मैं परसों चला जाऊंगा सुबह सुबह। कहा ठीक है। तो कहा परसों जब जाएंगे तब तक मेरे पास कल का दिन है, तुमको अगर कुछ भी बात पूछनी हो तो पूछ सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के या कोई भी बात आश्रम को संभालने को लेकर के तुमको जो पूछना है पूछ लेना। लेकिन याद रहे, गुरुजी ने कहा कल का दिन मेरा मौन का है, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे कुछ भी पूछेगा तो मैं लिख करके तेरे को जवाब दे दूंगा। शिष्य ने कहा ठीक है। दोनों रात को सो गए। रात को सो जाने के बाद दूसरे दिन जैसे ही उठे तो शिष्य के मन में विचार आया कि गुरुजी से इतना तो पूछ लूं कि उनकी एब्सेंस में मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो गुरुजी की कुटिया में गए और गुरुजी से कहा, हाथ जोड़ करके, गुरुजी एक बात बताओ कि आपके एब्सेंस में मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो गुरुजी का तो मौन था, तो कागज और कलम लिया और उस पर एक शब्द लिख दिया, जागृति, अवेयरनेस। शिष्य को दिया, कहा जागृति, बस। फिर जो है उसको लगा ये तो बहुत इजी है, माना मुझे जागृत रहना चाहिए, ये गुरुजी कहना चाहते हैं। बाहर निकला कुटिया से, बार बार उस कागज को देखे, बार बार उसके मन में आए, गुरुजी ने और कुछ लिखा ही नहीं, आगे पीछे कुछ लिखा ही नहीं, खाली जागृति। बहुत कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज हो गया तो फिर से गया गुरुजी के पास कि गुरुजी कुछ आगे पीछे भी तो लिख दो। गुरुजी का तो मौन था। फिर वो कागज लिया, एक शब्द आगे जोड़ा, एक शब्द पीछे जोड़ा। आगे जो शब्द जोड़ा वो भी जागृति था, पीछे जो शब्द जोड़ा वो भी जागृति था। अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस। शिष्य ने सोचा बस इसका मतलब मुझे जागृत रहना चाहिए, आई हैव टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर, ये तो इजी है, मैं कर लूंगा। बाहर निकला, लेकिन जितनी बार उस कागज को देखे उतनी बार कंफ्यूज होता जाए कि गुरुजी कुछ लिखते ही नहीं है, बस एक ही शब्द लिखा। तो जो है बहुत जब कंफ्यूज हो गया तो फिर गुरुजी के पास गया कि गुरुजी आखिर भी अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट। तो गुरुजी ने फिर वो कागज लिया और उसके ऊपर इज इक्वल टू अवेयरनेस, जागृति। गुरुजी का संदेश बहुत क्लियर था, लेकिन यह शिष्य समझ नहीं पा रहा था। वो कहना ये चाहते थे कि मेरे पीछे तुम एक आश्रम को संभालोगे तो यू विल हैव टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर। तुम क्या बात करते हो, यू शुड बी कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ योर स्पीच,
हर शब्द जो उच्चारण करते हैं एक जागृति के साथ, अवेयरनेस के साथ उच्चारण करो। तुम जो सोचते हो, हर सोच के प्रति तेरी जागृति चाहिए, हर कर्म के प्रति तेरी जागृति चाहिए। तुम्हारा हर बिहेवियर दूसरों के साथ कैसे होगा उसके प्रति तेरी जागृति चाहिए। तुम्हारी चलन कैसी है उसके प्रति जागृति चाहिए। कितना डीप मैसेज था। ठीक इसी तरह जीवन में हमें भी हर वक्त जागृति, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और अवेयरनेस अगर होगी अपने अंदर तब एक्नॉलेज कर सकेंगे, हाँ यहाँ गलती हो रही है, यहाँ ठीक करने की आवश्यकता है, इसको ठीक करने की जरूरत है, तो एक्नॉलेज कर सकेंगे। और एक्नॉलेज करने के बाद स्वीकार के जहां गलती हो गई तो वहां सॉरी भी कर पाएंगे और सॉरी करते हुए उसको ठीक भी कर सकेंगे। तो इसीलिए जो है ये बहुत आवश्यक है कि उसको हम समझ करके ठीक भी करें, क्योंकि ठीक किया, जल्दी उसको सॉरी करके ये कर लिया तो वी विल असेंड। बहुत सहज रीति से हम जीवन में ऊंचा उठ सकेंगे और तब हमारा ट्यूनिंग हर एक के साथ इतना सुंदर ट्यूनिंग हो जाएगा, दिल का ट्यूनिंग जो हो जाएगा। जैसे कई लोग हर एक के दिल को जीत लेते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के दिल को नहीं जीत पाते हैं। उसका कारण ये है कि उनको मैनेज करना ही नहीं आता है। तो इसीलिए अपने आप को मैनेज करना है, अपने ईगो को मैनेज करना है, तो जागृति बहुत जरूरी है। और ये जागृति रखने से ही अगर देखा जाए कि धीरे धीरे लाइफ में जो है वो बहुत अच्छी तरह से 7 हैबिट्स हम डेवलप कर सकते हैं। और सारा एसेंस अगर मैं ले आऊं उस बात को टॉक का, क्योंकि ईगो के ऊपर वैसे तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन सार में ये पाथवे बता दिया, मैनेज करने का तरीका ये पाथवे बताया। अब खाली 7 बातें याद रखो, द 7 हैबिट्स। आपने शायद पढ़ी होंगी नॉर्मन विल्सन के 7 हैबिट्स फॉर इफेक्टिव पीपल, है ना। लेकिन आज हम आपको बताते हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव, हाईली एनलाइटेंड सोल। और वो 7 हैबिट्स कौन सी है? तो पहली हैबिट है जिसको कहा जाता है बी क्वाइट। कभी कभी हमें मन को भी शांत करना पड़ता है, और मन को शांत करेंगे तभी हम अपने आप को देख सकेंगे, अपने विषय में वो जागृति डेवलप कर सकेंगे। अगर माइंड बहुत हसल बसल चल रहा है तो वो अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगी। इसलिए कभी कभी माइंड को साइलेंट करना भी जरूरी है। जब मन को शांत करेंगे तो हम अपने अंदर अपने आप को देख सकेंगे। फिर दूसरी हैबिट जो है लेट गो। क्या लेट गो करना है? तो ये जागृति चाहिए कि मुझे अपने अंदर कौन सी ऐसी चीज मैंने पकड़ी है, कहीं मैं किसी बिलीफ सिस्टम को पकड़ के तो नहीं रखा है, उसके साथ अटैच तो नहीं हो रही। आई नीड टू लेट गो ऑफ दैट। और लेट गो करने के साथ साथ फिर तीसरी हैबिट जो है लेट बी। लेट बी माना वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सो लेट अस बी। एंड व्हाट डू वी हैव टू बी? जो मेरी रियल आइडेंटिटी है, लेट अस बी दैट। वी नीड टू बी एंड लेट बी अदर्स ऑल्सो। दैट इज द रियल फ्रीडम। उस फ्रीडम को एक्सपीरियंस करना है। फिर चौथी हैबिट जो है लिसनिंग। भीतर अपने उस कोर को सुनो, लिसन टू दैट डीप कोर ऑफ आवर इंट्यूशन। वो हमें कुछ कह रहा है। तो जब आप रियल फ्रीडम को महसूस करेंगे तब आप उस आवाज को सुन सकेंगे, अंतरात्मा की आवाज को बहुत अच्छे तरह से सुन सकेंगे। और जब सुनते हैं उस आवाज को, देन वेक अप, जागृत हो जाओ। वेक अप, we are not doing what we are supposed to do, so wake up. Or wake up, we have to do what we are supposed to do. उसके बाद छठी हैबिट जो है नो योर सेल्फ।
आपकी पोटेंशियल को समझो कि हमारी पोटेंशियल कहाँ है, कितनी है, कैसी है, एंड जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट पोटेंशियल। और उस पोटेंशियल को जानने के बाद जब उसकी अवेयरनेस आ जाती है, देन पास ऑन, आगे बढ़ो। क्योंकि जब कोई चीज को पकड़ के रखते हैं तो आगे बढ़ना मुश्किल होता है। सो पास ऑन, आगे बढ़ना है। जीवन में जो कुछ भी आता है उसको पास ऑन करो आगे। अपने अनुभव को भी आप दूसरे के साथ शेयर करके उनको भी जागृत करो। जो भी हमारे पास आता है उसको पास ऑन करें। लाइफ में भी हमें आगे बढ़ना है। तो ये 7 हैबिट्स है जिस हैबिट्स को हमें कल्टीवेट करना है। और जब ये हैबिट्स को कल्टीवेट करते हैं तो उस ईगो के ऊपर हम बहुत अच्छी तरह से विजयी हो सकते हैं। राइट? तो ये शॉर्ट में, क्योंकि टाइम हो रहा है इसीलिए, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन टू द पॉइंट उस चीज को ले आए हम। और फिर भी अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच उषा दीदी। ये सेशन आपका बहुत बहुत अच्छा रहा। ये बिल्कुल हमारे लिए बहुत समझने वाली बात है। जनरली हम लोग कई बार इस तरफ में गौर नहीं करते हैं, तो आपकी सारी बातें हमारे पास में रिकॉर्ड भी हो गई है और हम उस पर जरूर जरूर उस पर चिंतन भी करेंगे और अमल में भी लाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चेयरपर्सन मीनाक्षी मैडम, प्लीज कम फॉरवर्ड। चेयरपर्सन, हाँ, आशा ठाकरे मैडम। हेलो ठाकरे मैडम। यस यस। हाँ हाँ मैडम, अब आपके बिल्कुल रिमार्क्स दीजिए जिसके लिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। आपसे ही तो सीखे हैं उषा दीदी की बातें भी। जब विचारों में हो स्पष्टता, वाणी में हो शुद्धता, वक्तृत्व में ओजस्विता, फिर क्यों ना करें हम महसूस दिव्यता और सिर्फ दिव्यता। धन्यवाद उषा दीदी। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आपने जो महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा की है, जो रास्ता बता है, वो हम सब के लिए बहुमूल्य है। You said ego is the wrong image of my own self, but most of the time we get confused regarding ego or self-respect. आपने स्पिरिचुअलिटी का आईना दिखाकर पूरा चित्र स्पष्ट कर दिया है। सोल टू सोल कनेक्शन जब रहता है वो एक ही लेवल पर रहता है, इक्वल एंड ईगोलेस। पर जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं, पोस्ट और पोजीशन के लेयर्स बढ़ते जाते हैं और सूक्ष्म रीति से ईगो का प्रवेश हम में हो जाता है। अब ये प्रवेश कैसे रुका जाए, यह आपने बहुत बखूबी बताया है। आपने बताए हुए जागृति के जो 7 हैबिट्स है, जागृत रहने के लिए उस पर हम जरूर अमल करेंगे। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओम शांति उषा दीदी, बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों बाद आपसे मिलते हुए। जरूर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनुराधा पाठक मैडम, योर रिमार्क्स प्लीज। Am I audible? यस यस मैम। आवाज आ रही है? हाँ। आ रही। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपको इतने बार सुनने के बाद भी हर बार जब सुनते हैं हमारे ज्ञान एक नया ज्ञान की बढ़ती होती है। तो ईगो जैसा सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट आपने उदाहरण देकर इतने इजीली समझाया है कि वो आपके जो 7 हैबिट्स के स्टेप्स है वो सबने अंगीकार ये अपनाए, तो उनको इगोइस्टिक की वजह से उनका नुकसान नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एग्जाम्पल। थैंक यू। डॉक्टर शोभा देशमुख मैम। मीनाक्षी मैम। Yes. So thank you. I thank chairperson for chairing the session, and once again I thank Rajogini B.K. Usha Didi for wonderfully explaining the topic
and giving us the healing emotions, that is awareness, acknowledge, acceptance, ascend, and attune. Thank you, Didi. Thank you very much.